Hello children, hope you all doing good. Let's start today's chapter, food, our basic need. Learning objectives, food groups, dietary fiber and water, balanced diet and preservation of food. All living beings need food. Food gives us energy for doing activities such as studying, playing, walking and talking. Some of the energy is also used to help us grow. Can you name 5 food items in the given picture? जितने भी लिविंग थिंग्स हैं हर किसी को फूड की ज़रूरत होती है फॉर डूइंग एक्टिविटीज़, फॉर ग्रोइंग, राइट। और कुछ एनर्जी जो है वो यूज़ हो जाती है हमें ग्रो करने में. तो यहाँ पे आपको फूड आइटम्स दिए गए, यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड नेम दैम. Food groups. The food that we eat has many substances that help our body to grow and stay healthy and strong. The substances that are needed by our body for energy, good health and proper growth are called nutrients. Nutrients give us energy to do our work. They help us to repair our body and also prevent us from falling ill too often. The main nutrients found in food items are carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals. देखिए फूड में बहुत सारे जो फूड हम खाते हैं उसमें बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं जो हमें ग्रो करने में हेल्प करते हैं, हमें हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं. तो इन सब्सटेंसेस को कहा जाता है न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स तो हमें एनर्जी प्रोवाइड तो करते ही हैं, इसके अलावा हमारी बॉडी को रिपेयर करने में हेल्प करते हैं, हमें बीमार होने से बचाते हैं. तो मेन न्यूट्रिएंट्स जो हमारे खाने में पाए जाते हैं वो ये हैं आपके. Carbohydrates. Food items such as cereals, rice, wheat and corn and vegetables such as potatoes give us a lot of energy. They contain carbohydrates. Food items rich in carbohydrates are called energy giving foods. People who do a lot of physical work such as laborers, farmers and sports person need a lot of carbohydrates to give them more energy. आपके फूड आइटम जैसे कि आपके सीरियल्स होते हैं, राइस, व्हीट या कॉर्न या वेजिटेबल जैसे कि पोटैटोज़ है, इनसे हमें बहुत सारी एनर्जी मिलती है. तो इनमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है. तो जो फूड आइटम जिनमें कार्बोहाइड्रेट होता है एक्चुअली आपके एनर्जी गिविंग फूड होते हैं. और एनर्जी गिविंग फूड्स या कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत किसे होती है? जो बहुत सारा फिजिकल वर्क करते हैं, जैसे स्पोर्ट्स पर्सन हैं, लेबरर्स हैं या फिर फार्मर्स हैं. Proteins. Food items such as milk, egg, cheese, fish, meat, beans and pulses are rich in proteins. Food items rich in proteins are called body building foods. They are needed for the growth and repair of our body and also for building muscles. Young children need more protein rich food than adults because they are still growing. वो फूड आइटम जिनमें आपका प्रोटीन होता है उन्हें हम कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड. बॉडी बिल्डिंग फूड यानी कि प्रोटीन रिच जो फूड होती है वो हमारी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होती है, हमारी बॉडी के रिपेयरिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है एंड मसल्स बिल्ड करने के लिए इंपॉर्टेंट होती है. तो जो यंग चिल्ड्रन होते हैं यानी आप जैसे चिल्ड्रन, उनको ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है एडल्ट के कंपैरेटिवली, क्योंकि आपकी जो बॉडी होती है इट इज़ स्टिल ग्रोइंग. Fats. Food items such as nuts, oil, ghee and butter are rich in fats. They provide more energy than food items rich in carbohydrates. They also help to keep the body warm. Our body needs very little fat. Extra fat is stored in the body for later use. आपके जैसे ऑयल, घी या नट्स होता है जो आपके थोड़े से ऑयली होते हैं, उनको फैट रिच होते हैं. ये ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट से. तो ये हमारी बॉडी को वार्म रखने में हेल्प करते हैं, बट ये हमारी बॉडी को बहुत थोड़ी सी अमाउंट में चाहिए होता है. और बाकी का जो फैट होता है यानी जो एक्स्ट्रा फैट होता है वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है बाद में फ्यूचर में कोई यूज़ करने के लिए. Vitamins and minerals. Food items such as fresh fruits and vegetables, milk, eggs and peanuts are rich in vitamins and minerals. They protect us from disease and keep us fit and healthy. They are also called protective foods. आपके fruits and vegetables को protective food कहा जाता है. इनमें आपके vitamins and minerals मिलते हैं. ये हमें disease से protect करते हैं, हमें healthy and fit रखते हैं. Vitamin A, B complex, C, D, E and K are some important vitamins required by our body. Vitamin A improves eyesight and keeps our skin healthy. Vitamin B complex is needed for various functions of the body. Vitamin C helps to fight infections and keeps our gums and teeth healthy. Vitamin D helps in proper absorption of calcium in our body. Calcium, iron, potassium, iodine and sodium are examples of minerals. अच्छा देखिए ये सारे जो आपके वाइटामिन्स के टाइप्स है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी बॉडी के लिए. विटामिन ए जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू इम्प्रूव आवर आई साइट एंड टू कीप आवर स्किन हेल्दी. इसके अलावा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है बॉडी के वेरियस फंक्शंस के लिए चाहिए होता है. अगेन विटामिन सी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इन्फेक्शन से फाइट करने में बहुत हेल्प करता होगा है एंड आपके गम्स को एंड टीथ को हेल्दी रखने में हेल्प करता है. विटामिन डी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, right? तो vitamin D is also very important. All the vitamins are important by the way. And आपके ये जो कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम ये सारे के सारे आपके क्या हैं? मिनरल्स हैं.
Calcium helps in the formation of bones and teeth. Examples of calcium-rich food items are milk, curd, almond, and cheese. Iron helps in the formation of blood. Examples of iron-rich food items are green leafy vegetables, dry fruits, and legumes. Calcium जो है bones and teeth की formation में help करते हैं. तो आपके calcium-rich food कौन से है? These. आयरन जो है ब्लड के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, तो आपके ये सारे ही क्या है? आयरन रिच फूड है. फैक्ट फाइल. मिल्क कंटेन्स मिनरल्स सच एज कैल्शियम, वाइटामिन्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स. ये सारी चीज़ें आपके क्या होती हैं? मिल्क में मिलती हैं. मोस्ट फूड आइटम्स कंटेन वाटर. 3/4 ऑफ आवर बॉडी वेट इज वाटर. ज़्यादातर फूड आइटम में वाटर होते हैं एंड आर बॉडी, हमारी बॉडी में 3/4 हमारी जो बॉडी का वेट है दैट इज वाटर. Dietary fiber and water. Food items such as cereals, corn, green leafy vegetables and fruits contain fiber that cannot be digested by our body. The part of the plant food that cannot be digested is called dietary fiber. It helps to remove waste materials from our body. Hence, dietary fiber is very important to eat. Water is also a very important part of our diet. Our body needs water for all its functions. We should drink plenty of water every day. अब देखिए आपके जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं ये तो इंपॉर्टेंट है ही. अब कुछ ऐसे फूड आइटम्स होते हैं जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल है, कॉर्न है, सीरियल या फ्रूट्स, इनमें फाइबर होता है जो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती. तो प्लांट फूड का वो पार्ट जिसे डाइजेस्ट नहीं किया जाता दैट इज कॉल्ड डाइटरी फाइबर. अब ये क्या हेल्प करता है? हमारी बॉडी से वेस्ट मटीरियल को रिमूव करने में हेल्प करता है. वाटर भी आपके डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो हमें इसीलिए डेली प्लेंटी ऑफ वाटर पीना चाहिए. Balanced diet. A diet that has all the nutrients and right amount of dietary fiber and water is called a balanced diet. वो डाइट जिसमें सारे ही आपके न्यूट्रिएंट्स अप्रोप्रिएट अमाउंट में हो, उसमें डाइटरी फाइबर हो, उसमें वाटर हो, दैट इज कॉल्ड द बैलेंस्ड डाइट. द पिक्चर शोन shows some food items that make a balanced diet. In order to stay healthy, we should eat food items from each of these food groups daily. तो देखिए अभी आपको मैंने फूड ग्रुप्स के बारे में बताया. आपको डेली इन फूड ग्रुप्स में से कुछ ना कुछ खाना चाहिए, तभी आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा. ये देखिए आपको एक फूड आइटम्स दिए गए हैं बैलेंस डाइट. Preservation of foods. If food items are kept for a long period of time and not stored properly, they get spoiled. Such food items are bad for our health. Preservation of food prevents it from getting spoiled. We can preserve food in a number of ways. अगर फूड आइटम्स को आप स्टोर करके रखेंगे नहीं प्रॉपर्ली तो क्या होगा? कुछ टाइम के बाद ये खराब हो जाएंगे और इनको अगर हम खाएंगे तो हमारी हेल्थ भी खराब हो जाएगी. तो बहुत सारे तरीके हैं फूड को प्रिजर्व करने के लिए. तो देखते हैं सबसे पहले ड्राइंग. रिमूविंग द वाटर कंटेंट ऑफ द फूड, फॉर एग्जांपल ड्राइंग ग्रेप्स टू गेट रेजन्स. ड्राइंग का मतलब फूड में से उसका जितना भी वाटर कंटेंट है उसको रिमूव कर दिया जाए. जैसे कि आपके रेजन्स होते हैं, किशमिश, वो किससे बनते हैं? ग्रेप से, जब उन्हें ड्राई कर दिया जाता है. पिकलिंग, मिक्सिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विद सॉल्ट एंड ऑयल, फॉर एग्जांपल मिक्सिंग मैंगो, लाइम एंड अदर वेजिटेबल्स विद ऑयल एंड सॉल्ट. पिकलिंग, अचार जो बनाते हैं, दैट इज ऑल्सो अ मैथड ऑफ प्रिजर्वेशन. Refrigerating, keeping food in the fridge to preserve it for a short time. For example, keeping cooked food and fresh vegetable in the fridge. अब फ्रिज में हम क्या करते हैं? चीज़ों को स्टोर करते हैं ना, बट थोड़े टाइम के लिए. Deep freezing, keeping food in the freezer to preserve it for a longer time. For example, keeping meat and fish in the freezer. अगर आप चाहते हैं कि आपका खाना लंबे समय तक सही रहे तो हम उसे फ्रीज़र में डाल देते हैं. जैसे कि आपका फिश रखते हैं या मीट को फ्रीज़र में डाल देते हैं. Canning and bottling, storing food in cans and bottles, for example bottling of sauces and jams. आपने देखा होगा sauces and jams को bottles में या cans में, इससे काफ़ी लंबे समय तक ये stored रहते हैं. Rest, posture and exercise. Our body needs rest for proper functioning. We need 6 to 8 hours of sleep in a day. Lack of sleep may result in improper functioning of body organs. It can make us fall ill. Therefore, staying up late is not a good idea. Posture refers to body position. It is important for us to keep our backs upright while standing or sitting. Incorrect posture over a long period of time can lead to pain in joints and muscles. देखिए हमारी बॉडी को रेस्ट की भी बहुत ज़रूरत है ताकि हमारी बॉडी जो है प्रॉपरली फंक्शन करे. तो हमें डेली 6 to 8 आवर्स सोना चाहिए. अगर आप स्लीप डिप्राइव्ड हो जाएंगे, स्लीप की कमी हो जाएगी तो हमारी बॉडी जो है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगी. इससे हम बीमार हो जाएंगे. एंड अब तो क्या होता है, लोग देर रात तक जगे रहते हैं, बट इट्स नॉट अ गुड आइडिया. पॉस्चर का मतलब है बॉडी पोजीशन का. जैसे देखिए दिस इज़ द करेक्ट पॉस्चर. आपको ऐसे भी नहीं बैठना है, ना ही आपको इस तरह से बैठना है जिसमें आपकी बैक जो है एकदम अपराइट रहे, चाहे आप बैठे हों चाहे आप खड़े हों.
Exercise is important to stay healthy. Regular exercise and playing outdoor games such as hockey, football and cricket help us to stay fit. Yoga, an ancient method of exercise practiced in India, also helps in keeping our body fit. Exercise भी हमारे लिए बहुत ही important है to stay healthy. अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं, आउटडोर गेम्स खेलते हैं, कोई भी, तो इससे आप फिट रह सकते हैं. योगा, ये आपका एक एंशियंट प्रैक्टिस है एक्सरसाइज की, जिससे कि हम प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए. Fact 5. 21st June is celebrated as International Yoga Day as declared by the United Nations General Assembly. 21st June, I'm sure आप सभी को पता है 21st June क्या है आपका International Yoga Day. Summary. All living things need food to get energy, to work and repair their body. Carbohydrates and fats provide us energy. Proteins are needed for the growth and repair of our body and also for building muscles. Vitamins and minerals help to protect our body from diseases. Water is also a very important part of our diet. A balanced diet consists of all the nutrients in the right amount, dietary fiber and water. We can preserve food by drying, pickling, refrigerating, deep freezing and canning and bottling. Proper rest, correct posture and regular exercise are important for a healthy body. जितने भी लिविंग बींग्स हैं सभी को खाने की ज़रूरत है टू गेट एनर्जी, टू डू वर्क एंड टू रिपेयर देयर बॉडी. कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? एनर्जी. प्रोटीन्स इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारी बॉडी को बिल्ड करने में हेल्प करते हैं, हमारी बॉडी को रिपेयर करने में हेल्प करते हैं. वाइटामिन्स एंड जो मिनरल्स होते हैं ये डिसीज से हमें प्रोटेक्ट करते हैं. बैलेंस डाइट के अलावा आपका जो वाटर है ना, दैट इज़ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट. और बहुत सारे फूड आइटम्स को हम क्या कर सकते हैं? प्रिजर्व करके रख सकते हैं. बहुत सारे तरीके हैं. तो बैलेंस डाइट के साथ साथ आपको प्रॉपर रेस्ट भी लेना है. देयर शुड बी करेक्ट पॉस्चर एंड रेगुलर एक्सरसाइज भी करनी है ताकि आपकी जो बॉडी है वो हेल्दी रह सके. चिल्ड्रन, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा. आई होप आप सभी बैलेंस डाइट लेंगे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद. एंड नाउ इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे.